Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and a very good evening. I'm Khatija Zishan, your host for today. On behalf of the AMP team, I welcome you all to the Career Guidance Seminar. Before we start the talk, let's catch a glimpse of what AMP is all about. First slide, please. AMP stands for Association of Muslim Professionals. It's a non-profit organization started in the year 2007, registered in India, USA, UK, and Australia. It has been serving our country in the field of education, employment, and empowerment, and it has a vision to positively impact lives of 10 million people by 2030, inshallah. AMP's mission is to serve the underprivileged to benefit the society and nation as a whole. AMP's vision to be a model community which is advanced in education, socially progressing, culturally vibrant, politically influential, and economically dynamic. Next, please. Some of the prominent achievements of AMP under the School Development Program, 2,800 plus skill development lectures were delivered, connected with 800 plus schools, 281,000 students were benefited, and more than 100 teachers training and parenting workshops were conducted. Employment Assistance Cell organized 360 plus job fairs and job drives, which helped in the employment of 21,000 plus candidates. More than 200 employability training were conducted, and 17,000 plus degree students were benefited. Scholarships and self-employment, more than 800 higher education scholarships were sponsored, 860 plus towards orphans education. More than 400 families were benefited from this program. AMP's Resource Center has 660 plus career counselors and 2,500 plus students have been counseled. 50 plus career guidance documents and 1,500 plus career chart distribution can be found. Awards and partnerships, 380 plus renowned educationalists connected and awarded. 50 plus partnerships including state governments and 100 plus NGO partners. Next. AMP recently launched the new digital initiatives, which include indiazakat.com, indiamentors.com, and empowerjobs.com. Indiazakat.com is India's first Zakat crowdfunding platform where Zakat seekers and Zakat givers are unified. Its objective is to serve the needy. indiamentors.com is a mentorship portal for students from different backgrounds to be mentored by esteemed members of the community. So students, please register at the indiamentors.com as mentees. It's free and you will be connected with a mentor. So next is empowerjobs.com is a free portal to help job seekers connect with the employers. It also offers skill training programs and employability training programs. Next. AMP's reach. It has an on-ground presence of more than 140 active chapters, 26 states, 16 countries with 7 plus active members. It also has an online presence of 120,000 plus members and professionals connected on various social media platforms. Next. To join AMP, visit www.ampindia.org/joinamp. We also have a YouTube channel where you can find these career guidance seminar videos. If you have any questions, please post it in the Q&A box seen on your screens. We will address it at the end of this session. So joining us today as our speaker is Ms. Faiza Makhmoor. She has more than 6 years of experience in the field of education. Currently, she is working with Cosmo Consultants in the Immigration and Filing Department. She counsels students on education and colleges abroad and also takes classes for IELTS aspirants. She has previously worked with NIIT and IIJP as a technical trainer.
She is also the recipient of Bravery Award Road Safety 2019 from Honor Issuer Ministry of Transport Government of Uttar Pradesh. A very hearty welcome to you, ma'am, from the AMP team. Thank you. Over to you, ma'am. Assalamu alaikum, everyone. I hope everyone is doing well. This side Faisal Mahmood, speaker of a day. Let me quickly give you a bit about myself. As ma'am told you, I'm IELTS faculty in one of the organizations in Bareilly. I'm also working as a digital head in Maverick Studios. So as I have a lot more to go, but we don't have this much time. So I'll quickly jump into the presentation. So I'm starting. So today we are going to discuss about career in mass media and journalism. Everybody is aware about mass media and journalism, but we don't have, some have knowledge about it, some don't have, right? So today I'm share my experience with you all in this field and let you know as much as I can with you. So we'll start this. मास मीडिया होता क्या है? मीडिया एक आउटलेट है, प्लेटफॉर्म है जहां हमारा सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा होता है, राइट? Who coined this term media? There is name John Gutenberg. He introduced the term mass media, this is a form of media which was started in the Middle Age in Europe. तो मास मीडिया है क्या? मास मीडिया तो हमें पता चल गया कि मीडिया एक तरीके का आउटलेट है जहाँ पे हमारा सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो मैगजीन्स हो, चाहे वो हमारी टीवी एंड रेडियो हो, न्यू इंटरनेट हो, इन कोई भी एजेंसी हो सकती है या ऑल्टरनेटिव मीडिया हो सकता है। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब है कि हमारे पास दो तरीके की मीडिया होती है, एक तो हमारी प्रिंट मीडिया होती है और एक हमारी डिजिटल मीडिया होती है। मैं थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ कि प्रिंट मीडिया क्या होती है। प्रिंट मीडिया जैसे कि जिस चीज को आप छू सकते हैं, राइट? जिस चीज को आप छू सकते हैं किसी भी हार्ड फॉर्म में, लाइक वो मैगजीन भी हो सकती है जैसे कि मैंने अभी बोला, कोई बुक भी हो सकती है, हो सकता है इस वक्त आपके हाथ में कोई बुक हो, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रिंट मीडिया, राइट? हार्ड फॉर्म में। नाउ विल टॉक अबाउट डिजिटल मीडिया। आप लोगों ने देखा है डिजिटल मीडिया लास्ट कोविड के टाइम से कितना एक्सप्लोर हो गया है, उसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास। सो लाइक इंटरनेट है, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, सो जिसपे हम अपना एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं, जिसपे हम अपना कुछ भी सामान सोल्ड आउट भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई जस्ट ओनली टू टेल यू अबाउट हियर कि ये एक एग्जाम्पल है हमारा डिजिटल मीडिया का, जो भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के थ्रू से हमारे पास होके आती है, हमारी ऑडियंस के पास आती है, वो एक फॉर्म होता है डिजिटल मीडिया का। आई थिंक I am much clear to all of you. So, rules of mass media. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, what is media? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मीडिया एक टूल है जहाँ से हमारी इंफॉर्मेशन डिलीवर होती है। टूल्स में आप, ये तो मैंने थोड़े से ही लिखे हैं, बट बहुत सारे आते हैं इसमें, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट एंड एन नंबर ऑफ इट। मीडिया तो हमने देखा कि हमारे पास एक आउटलेट है, एक जरिया है, बट उस चीज को अब हमें अल्टीमेटली अपने डेस्टिनेशन प्लेस तक पहुंचाना भी तो है। तो जो भी मीडियम है वो हमारे आपने देखे। मास क्या होती है? मास हमारी होती है ऑडियंस। यहाँ पे हम जिसकी बात करेंगे, हम अपने ऑडियंस की ही बात करेंगे या डेस्टिनेशन प्लेस की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन, मैगजीन की जो भी इंफॉर्मेशन हमें अपने पब्लिक तक पहुंचानी है वो हमारी मीडिया करेगी, right? So we can communicate to a large number of people with the help of mass media. Mass हमारा larger in size को बोलते हैं। अब यहाँ पे जब बात हो रही है मीडिया की तो वो people से रिलेट होगा। तो जब हम एक इंफॉर्मेशन अपने लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को पहुंचाते हैं थ्रू एनी मीडियम इज कॉल्ड मास मीडिया। जैसे कि as you can see here, means of communication used to reach the vast majority of general public. वो हमारे जनरल पब्लिक तक कैसे पहुंचेगी? विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया। जैसे कि अभी हम इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे डिफरेंट आजकल आपने देखे सेलिंग प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। तो हमारी जनता को किस तरीके से पता चल रहा है कि यहाँ पे इस
पर्टिकुलर प्लेस पे ये चीज हमें मिल रही है, यहाँ से खरीदनी चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ मास मीडिया, राइट? सबसे पहले मैं आपको बता दूं रोल्स ऑफ मास मीडिया के क्या होते हैं. ये टाइप्स ऑफ मास मीडिया विल बी कंटिन्यू, बट बिफोर दैट आई लेट यू नो अबाउट रोल्स ऑफ मास मीडिया. रोल्स ऑफ मास मीडिया का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हमें अपने पब्लिक तक या हमें अपने ऑडियंस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाना है या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाना है. ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, अपनी नॉलेज, whatever the knowledge you have, जैसे कि मैं अभी आप लोग से बात कर रही हूँ, मैं आपको पहुंचा पा रही हूँ with the help of digital media, with the help of network, ठीक है? It is only possible हम आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, राइट? ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज हम कर पा रहे हैं. अवेयरनेस अबाउट करंट अफेयर्स, जैसे कि हमारी सोसाइटी में कुछ भी इश्यूज, मुद्दे चल रहे हैं, कोविड के बारे में हमें घर बैठे तो नहीं पता चला, राइट? तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें मास मीडिया के थ्रू मिल रही है. एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, कौन सी मूवी आई है, कौन सा गाना आया है, कौन सी नई नई चीजें, एक एन नंबर ऑफ चीजें मीडिया में है, तो एंटरटेनमेंट भी उसी का पार्ट है हमारा. पब्लिसिटी ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, रियलाइजिंग पब्लिक रिलेशंस, कल्चरल ट्रांसनेट, कल्चर के बारे में हमें कैसे पता चलता है, हम तो अपने यहाँ, हम अपने देश में बैठे हैं, बट हमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के बारे में कैसे पता होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ बैठे हैं, कोई हम पाकिस्तानी सीरियल देख रहा है या कहीं टर्किश सीरियल देख रहा है, तो उसके कल्चर को हम इनहबिट करते हैं, राइट? वो कैसे करते हैं, जब हम उस चीज को देखते हैं, और वो देखता हमारा कौन हेल्प कराता है, वो मीडियम. उस मीडियम के जो हेल्प हमें कराता है वो एक किसका फॉर्म है, इट्स अ फॉर्म ऑफ मास मीडिया. उसी की हेल्प से हम अपनी ये सारी चीजें कर पा रहे हैं. इन द एब्सेंस ऑफ दिस वी कैन नॉट डू, राइट? फ्रीडम ऑफ थॉट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने देखा होगा ट्विटर पे आप क्या करते हैं, आप कोई भी दो चीजों का मैसेज लिख के आप दे देते हैं, राइट? या किसी भी चीज पे जो यूज करते हैं ट्विटर, उनको पता भी होगा, जो नहीं है वो ट्राई भी करें प्लीज. तो इस तरीके से हम अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, अपनी फ्रीडम ऑफ थॉट पहुंचाते हैं लोगों को अलग अलग मीडियम से. सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, एवरी सोल्यूशन हैज अ प्रॉब्लम, राइट? आज तो थ्रू मीडिया वी कैन से दिस. सोशल कंट्रोल, यस, we get to know about new laws and regulations. हमें नए नए लॉज कहाँ से पता चल रहे हैं कि भाई आज गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया है, आज ये लॉ पास किया है, ठीक है, ये नया लॉ आज हमारे पास आया है, ठीक है? तो किसी भी चीज के बारे में अगर आपको रिलेटेड टू गवर्नमेंट या रिलेटेड टू एजुकेशन पता करना है, तो मास मीडिया इज अ बिग सोर्स ऑफ इट. सोशल मीडिया, ये सारे पार्ट्स हमारे क्या हैं, सोशल मीडिया के अंदर आते हैं, जो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, बिट बाय बिट. आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट. तो अब हम बात करते हैं मीडिया. अभी हमने देखा कि मीडिया है क्या, तो मैं आपको एक थोड़े से जिस्ट में बता देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं. मीडिया सिंपल एक सोर्स है, मीडियम अलग अलग चैनल से हमारी जनता तक पहुंचाने का, मास तक पहुंचाने का, दैट इज कॉल्ड मास मीडिया. मास मीडिया, राइट? जब हम बात करते हैं, हमारी मीडिया तीन तरीके से है डिवाइड. एक तो हमारी न्यूज मीडिया होती है, द सेकंड वी विल टॉक अबाउट सोशल मीडिया. सोशल मीडिया को हम बात करते हैं न्यू मीडिया भी, एंड द थर्ड इज वेब मीडिया. अब न्यूज मीडिया क्या है? The news media or news industry are a form of mass media that focus on delivering news to the general public. जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन बेसिकली अपने टारगेट पब्लिक को पहुंचानी है न्यूज की, लाइक, ठीक है, तो हम इस प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, राइट? ब्रॉडकास्ट न्यूज हो गए, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट के थ्रू भी आप बता सकते हैं ये, ठीक है? तो स्ट्रीमिंग न्यूज आपकी चलती है, लाइव न्यूज चलती है, तो सारा पार्ट किसका है? न्यूज मीडिया का. व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूज, इट कवर्स द पार्ट ऑफ न्यूज मीडिया. नेक्स्ट है हमारा सोशल मीडिया. सोशल मीडिया को एक दूसरा नाम भी दिया गया है अभी लास्ट ईयर ही, दैट इज कॉल्ड न्यू मीडिया, क्योंकि आजकल हर चीज डिजिटलाइज हो गई है. इट मीन्स इट इज द वे ऑफ इंटरेक्टिंग पीपल, राइट? हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, जैसे कि अभी मैं आप तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचा पा रही हूँ, just because of the network. It's only possible because of the virtual network we can connect. So
मार्केटिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बताया था कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, एन नंबर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे हम अपने पब्लिक या टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज वेब मीडिया। अब वेब मीडिया क्या होती है? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि वेब मीडिया और सोशल मीडिया क्या एक ही चीज होती है? नहीं, वेब मीडिया और सोशल मीडिया एक तरीके से चीज नहीं होती है। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन टू। वेब मीडिया एक तरीके की ओन्ड मीडिया होती है दैट डिस्क्राइब चैनल्स यू कंट्रोल। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो कोई न्यूज एजेंसी भी हो सकती है, कोई ब्रांड सेलिब्रिटी की भी कोई हो सकती है, या कोई कुछ भी हो सकता है, ई बुक्स की कोई भी साइट हो सकती है। उसको जो भी कंट्रोल करता है, उसके ऊपर जो भी कंटेंट या फिर उसके जो भी मीडिया साइट कंट्रोल करता है, वो हमारी होती है वेब मीडिया। लाइक व्हाइट पेपर्स, प्रेजेंटेशन, बुक्स, ब्लॉग्स। You fully control the content, where you fully control the content and its distribution। जिसका सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सारा आपके हाथ में होता है। उसको जहाँ पे आप डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, ओन कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड वेब मीडिया। Whatever the problems you are coming, we'll discuss in the end. Now, let's take a quick review of difference between mass media and mass communication। क्या होता है? काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास मीडिया क्या अलग है, मास कम्युनिकेशन अलग है। तो हम देखते हैं क्या डिफरेंस है यहाँ पे। मास मीडिया है क्या? एक मीडियम है, मेथड है तो अपनी इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करने का, मीन डिस्ट्रीब्यूट करने का, थ्रू ब्रॉडकास्ट, अलग अलग तरीके से वेरियस चैनल्स के थ्रू हम कर सकते हैं। रेडियो हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, राइट। एंड मास कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज रिफर्स टू द एक्ट ऑफ डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन टू द मास पब्लिक। अब वो हमारी पब्लिक तक जा रहा है, हमारी टारगेटेड ऑडियंस तक वो पहुंच पा रहा है अलग अलग चैनल्स के थ्रू। दैट इज हम कम्यूट कर पा रहे हैं, डिस्कस कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। तो मास मीडिया, आजकल ये मास मीडिया फील्ड सबको बहुत अट्रैक्ट कर रही है, इवन मुझे भी। सो लेट्स सी कि करियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं मास मीडिया में। जैसे कि आप कहीं पे भी काम कर सकते हो, लाइक ठीक है, आपने स्किल होना चाहिए, आप में टैलेंट होना चाहिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड भी होना चाहिए। बट मास मीडिया ऐसा कोई हार्ड या फास्ट नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो विल डिस्कस इन डिटेल कि क्या डिग्री, सॉरी क्या कोर्सेज आपको चाहिए, आप किस तरीके से बन सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट करियर ऑप्शंस इन मास मीडिया। A professional course in mass communication opens doors a vast number of careers in films and TV. You know, this is much interesting part, right? Public relations, journalism, editing, direction, filmmaking. हम देखते हैं कि कितनी अच्छी अच्छी तरीके से फिल्म्स बनाई गई होती हैं, हम भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं। कितने अच्छे से सीरियल्स कोई बनाए गए होते हैं, आजकल सीरीज बहुत चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है वो सिर्फ एक ही इंसान बनाता है, उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। तो in nutshell, I can say mass communication widens up to the horizon or n number of options for a person who is much interested into it. It's depending on the personal interest. Yeah, it's attract a high paying job. काफी अच्छी अच्छी जॉब्स भी रहती हैं इसमें। आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोग अवेयर भी होंगे, आपकी फैमिली में हो सकता है कोई हो भी। तो डायरेक्टर की जॉब होती है, एडिटर की जॉब होती है, स्क्रीन राइटर की जॉब होती है, आरजे प्रोड्यूसर की जॉब होती है, वीजे, डीजे, रेडियो जॉकी, बहुत सारी जॉब्स होती हैं, ठीक है। टैलेंट एंड ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड, बट इफ यू डोंट हैव, यू कैन एनहांस योर स्किल्स, नो प्रॉब्लम। वी कैन बिल्ड आवर स्किल्स इन आवर ओन। सो कोर्सेज इन मास मीडिया। अब हम बात करेंगे, ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा मास मीडिया है क्या। अब हमने सबको पता चल गया कि मास मीडिया है क्या, मास क्या होता है, मीडिया क्या होता है। जब दोनों पास में आते हैं तो मास मीडिया का रोल क्या होता है, मास मीडिया से किन किन चीजों के जरिए हम अपनी पब्लिक या टारगेट ऑडियंस के पास कोई भी इंफॉर्मेशन डिसमिनेट या डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, राइट। अब हम थोड़ी सी नजर डालते हैं कि हमारे कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल होते हैं मास मीडिया के अंदर। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप देखते हैं कि डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं मास मीडिया में, डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। नेक्स्ट हमारे यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी हमारा ये देता है मास मीडिया, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी देते हैं। सो
Candidates can pursue mass communication and these courses, undergraduate or postgraduate. Some of the popular courses here I have mentioned it. Let's take a review of it. That is Bachelors of Journalism and Mass Communication. If you want to acquire a bachelor's degree, आप BJMC कर सकते हैं. Bachelors of Journalism भी आप कर सकते हैं. Bachelors of Mass Communication भी है आपका. Master of Journalism and Mass Communication. Master of Journalism, जर्नलिज्म का भी हमने डिस्कस नहीं किया है, बट आप देख लीजिए इसमें इस तरीके के कोर्सेज भी आते हैं. विल डिस्कस यू, तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा. पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन. तो ये सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो. मैं इतने सारे तो नहीं लिख सकती थी यहाँ पे, बट दीज आर द फ्यू बेस्ट कोर्सेज इन मास मीडिया. तो जो आप एक्वायर कर सकते हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं करना चाहते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा और रिसर्च करें, थोड़े नोट्स बनाएं इनके बारे में. ठीक है, दे कैन गेट मच नॉलेज, दे विल नो मोर अबाउट इट. तो ये आप देख लीजिए. I think I should move forward. अब हम देख लेते हैं. क्वेश्चन तो आता है, अच्छा ओके मैम, हम मास मीडिया में ठीक है कोर्स में तो इनरोल किया, पर आप ये तो बताइए कि मास मीडिया में हम किस तरीके से इनरोल करते हैं. डिप्लोमा कोर्सेज तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें कि आप 10th के बाद और 12th के बाद भी ले सकते हो. बिकॉज मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, आपके पास स्टैंडिंग स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास वोकल अच्छा होना चाहिए. तो ये सारी चीजें ही आपको कंबाइनली बनाती है एक अच्छा कैंडिडेट. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, कैंडिडेट हु हैव क्लियर क्लास 12, जाहिर सी बात है कोई भी डिग्री परफॉर्म करने के लिए आजकल आप जैसा देख रहे हैं कितने सारे कॉम्पिटिशन्स आ गए हैं. अब तो बहुत कोर्सेज भी, कितने कोर्सेज हम तो चूज भी नहीं कर पाते हैं. तो आई होप यहाँ पे आपको थोड़ी हेल्प भी मिलेगी. तो जो भी कैंडिडेट जिसने 12th पास किया है अभी या पिछले साल, या जो भी इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो किसी भी आप उसका 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, राइट. किसी भी आइदर इट्स CBSE और ICSE, 50 to 60% उसके कॉलेज उसमें होने ही चाहिए. या फिर कई कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज बच्चे की उम्र देख के भी लेती हैं. मिनिमम 17 ईयर्स एट द एज ऑफ टाइम ऑफ एडमिशन, जहाँ तक ये कट एज होती है जहाँ पे हम अपना 12th पास कर लेते हैं, राइट. कुछ बच्चे का जिसका 2 से मतलब ऑलमोस्ट 3 साल में या 2.5 साल में हो जाता है, तो वो हो जाता है उसका 17 ईयर्स में. तो क्राइटेरिया उसका 50 to 60% भी होता है. कई बार कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो एज देखकर भी लेते हैं. तो इस बात को भी आप याद रखिएगा. अब हम बात करते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी. भाई ओके, अब हमने क्या किया, अब हमने सबसे पहले देख लिया मास मीडिया क्या है, मास मीडिया में ऑप्शंस क्या है, किस तरीके से हम एनरोल कर सकते हैं, क्या कट ऑफ होनी चाहिए मास मीडिया के अगर हमने कोई भी प्रोग्राम में लिया है. ठीक है, ओके, अब हमने मास मीडिया कर लिया. सही, मास मीडिया करने के बाद एवरीवन वांट्स जॉब, इवन आई टू. ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन होता है कि भाई इसमें हमें अट्रैक्टिव जॉब्स मिलेंगी या नहीं, राइट. तो कोई भी चीज बैठे बिठाई तो नहीं मिलती है. हर चीज में आपको थोड़ा सा अपने आप को ब्रश अप करना ही पड़ता है, चाहे वो मास मीडिया हो, चाहे वो कोई और सी फील्ड हो, राइट. साइंस हो या कॉमर्स हो, तो हमें अपनी स्किल्स को हमेशा ब्रश अप करते रहना चाहिए, राइट. आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा टिप्स. So job opportunities after mass communication, yeah. So as you can see here on screen, there are numerous job opportunities. So first one is advertising. अब एडवर्टाइजिंग क्या है? दिस जॉब की फिल्म मेकिंग एक बार मैं पढ़ देती हूँ, फिर हम एक बार डिटेल में सबकी बात करेंगे. जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशंस, पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो जॉकी, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिक रिलेशंस, इवेंट मैनेजर एंड मीडिया प्लानर. तो ये अट्रैक्टिव जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमारा मास कम्युनिकेशन करने के बाद हमें मिलती हैं. तो अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से, दैट इज एडवर्टाइजिंग. अब एडवर्टाइजिंग है क्या? जो लोग, आपने देखा है कि हमारे घर के बाहर भी बैनर्स लगे होते हैं अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए कोई भी नया पिज्जा आया है हमारे पास, पिज्जाटेरियन करके कोई भी हमने किसी ने एक शॉप खोली है, तो उसके बारे में हमें कैसे पता चला? जब तक पर्टिकुलर ओनर ने जब तक उसको बताया नहीं होगा, या किसी भी फॉर्म से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, उसने अगर हमारी तक इंफॉर्मेशन कैसी भी तरीके से डिसमिनेट की, ठीक है, तो उसने किस चीज से हेल्प किया? एडवर्टाइजिंग का, ठीक है, ताकि वो हमारे पास
एग्जीक्यूट कर पाया ताकि अपनी टारगेटेड ऑडियंस को वो पता चल पाई वो चीज। तो बहुत बहुत पॉपुलर जॉब्स हैं आजकल, आज के टाइम में एडवर्टाइजिंग जॉब इज वेरी मच पॉपुलर, आप गूगल भी कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स द पीपल हु क्रिएट द एडवर्टीजमेंट एज वेल एज दोज हु एग्जीक्यूट द डिजाइन। हमें लगता है घर बैठे हुए कि नए नए डिजाइन आ रहे हैं, बहुत ओके, बहुत अच्छे से तरीके से लोगों ने एडवर्टाइज करते हैं, बहुत डिफरेंट तरीकों से बनाते हैं सारी चीजें। जैसे कि अभी योगा डे भी निकला है, तो मैंने काफी अच्छे से लोगों ने बनाए हुए थे उस पर पोस्ट। तो ये कोई आसान बात नहीं होती है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपके पास क्रिएटिविटी चाहिए, स्किल्स चाहिए, और सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंदर, हमें हर दिन कुछ नया करना है। इट मीन्स दिस इज अ चैलेंजिंग जॉब। हमें हर दिन जब कुछ नया करना होता है ना, तो हम रात में सो के सुबह में उठते हैं, क्या आज हम करेंगे क्या। तो सबसे पहले इसलिए मैंने यही लिखा है क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है हमारे लिए कई बार, ठीक है। अब हम बात करते हैं द पीपल हु वर्क इन दिस फील्ड, दे आर अ चार्ज ऑफ क्रिएटिंग या मेकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज अट्रैक्टिवली सो दैट इट माइट attract the customer and the customer gets fully satisfied by the help of these advertising agencies। हो सकता है वो बंदा किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के लिए काम कर रहा हो, तो हैंडसम पैकेज पे करेगा। तो इस तरीके से ऐसा है, इसमें जॉब्स आपको बहुत अलग फील्ड में मिलेंगे। आप अपना एक कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी खोल सकते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम भी कर सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट डिस्क जॉकी। डिस्क जॉकी क्या है? जिसको बहुत इंटरेस्ट है वेरियस काइंड्स ऑफ म्यूजिक में, पॉप हो गया, जैक हो गया, अलग अलग तरीके का म्यूजिक का जिसको नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, किस म्यूजिक को मिक्स करके कौन सी अच्छी सी सूदिंग की साउंड आएगी, दैट पर्सन कैन गो टू डिस्क जॉकी। वो डिस्क जॉकी के लिए कर सकता है। जिसको क्लबिंग आती है, अच्छे से क्लबिंग आती है, लाइव शोज को स्ट्रीम करना आता है, देन दैट पर्सन कैन गो टू डिस्क जॉकी। ऑलराइट, नाउ आई थिंक आपको अच्छे से मैं समझा पा रही हूँ। नेक्स्ट इज फिल्म मेकिंग। अब फिल्म मेकिंग होता क्या है? फिल्म मेकिंग क्या है हमारा? फिल्म ऐसे ही नहीं बन जाती है, राइट। फिल्म में अलग अलग प्रोड्यूसर्स की जरूरत होती है, डायरेक्टर्स की जरूरत होती है, एडिटर की जरूरत होती है, स्क्रीन प्ले राइटर की जरूरत होती है। देखिए, फिल्म मेकिंग एक हेड है और ये सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, सब डायरेक्टर्स, एक्टर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, कैमरामैन, इन सब लोगों का हाथ होता है, तब जाके एक आप अच्छी मूवी देख पाते हैं, राइट। तो इट मीन्स हर जॉब अपने आप में एक चैलेंजिंग है, और हमें इसलिए कह रही हूँ मैं बार बार, इसलिए मास मीडिया भी अपने आप में एक चैलेंजिंग चीज बन चुका है आज के टाइम में। और पिछले कोविड से अगर आप इसको कंपेयर करें तो नंबर ऑफ जॉब्स निकल रही हैं डिजिटल मीडिया में। तो फिल्म मेकिंग में इस तरीके से द वन हु इज इंटरेस्टेड, जिसका प्रोड्यूसर में दैट फॉर एग्जांपल जैसे कि ही चूजेस द स्टोरी, जो फिल्म में जो प्रोड्यूसर होता है वो स्टोरी चूज करता है, ठीक है, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करता है, लाइक डायरेक्टर चूज करता है, लोकेशंस चूज करता है कहाँ फिल्म बनेगी, ठीक है। एडिटर क्या होता है, उसमें अगर कोई भी परेशानी होती है, कोई सीन एडिट करना होता है तो उसमें हेल्प करता है। स्क्रीन प्ले राइटर, जो स्टोरी आप देखते हैं अच्छी अच्छी बनाते हैं, जो आप तक बहुत हम तक पहुंच पाती हैं और कुछ हिट होती हैं, ठीक है, और कुछ जो भी होती हैं फॉर, तो वो सारा हेल्प हमारा कौन करते हैं, ठीक है। फिल्म मेकिंग की पूरा डिपार्टमेंट होता है, वो सब मिलके करते हैं। तो जिस भी डिपार्टमेंट में आपको इंटरेस्ट है, आप उस डिपार्टमेंट में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, राइट। हर किसी बंदे में कोई ना कोई स्किल होती है, ऐसा नहीं है, राइट। तो आप अपनी उसी स्किल को एनहांस करिए, ठीक है। डेवलप भी कर सकते हैं स्किल्स। लोग कहते हैं कि अपनी स्किल्स आप नहीं डेवलप नहीं कर सकते, कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप जो आपकी स्किल्स हैं आप उसको ब्रश भी कर सकते हैं, बस टैलेंट देखना है कि वो टैलेंट हमारा है क्या। अब हम बात करते हैं पब्लिक रिलेशंस की। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर कोई मेहमान आता है, ठीक है, अगर आप उससे ना बोलें तो वो क्या सोचता है, ओके, वो बंदा या वो बंदी लग रहा है ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं है। तो ऐसे ही हम बात करते हैं पब्लिक रिलेशंस। अगर हमें कोई इमेज या कोई भी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एडवर्टीजमेंट है या कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर हमें उससे अच्छे रिलेशन, ताल्लुकात तो अच्छे बनाने पड़ेंगे ना। तो उसी तरीके के यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, अच्छे से रिलेशन बना के चलते हैं। जैसे कि एक कंपनी ने कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी अपना प्रोजेक्ट साइन किया है दूसरी कंपनी के लिए, अब जाहिर सी बात है उन दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, उसी बेसिस के लेवल पे उन्होंने एक रिलेशन मेंटेन किया, एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन किया है, तभी वो इस पब्लिक रिलेशन को करेक्ट मतलब वेरीफाई कर पा रहे हैं,
राइट, अच्छे से। नेक्स्ट इज पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग। पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग का मतलब क्या है? पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग सिंपल सी बात है, कोई भी बुक को पब्लिश करना, लिख के, दैट इज कॉल्ड पब्लिशिंग। एंड प्रिंटिंग, वो डिजिटल मीडिया के फॉर्म में आप उसको प्रिंट करा सकते हैं, या आप किसी भी लाइक प्रिंट मीडिया के फॉर्म में करा सकते हैं। सो दैट आपका उसमें भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग में। रेडियो जॉकी, वीडियो जॉकी, अगर आपको इंटरेस्ट है इन सारी चीजों में भी, आप रेडियो सुनते हैं, ठीक है, वीडियो जॉकिंग, ये सारी चीजों में भी आप अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये आपस में मिली जुली चीजें हैं, डिस्क जॉकी हो गया, रेडियो जॉकी हो गया, वीडियो जॉकी हो गया। जिसको जैसे अगर हम कंबाइनली बात करें, जिसको वीडियो और ऑडियो का बहुत नॉलेज होता है, वो इस फील्ड में इसको अप्लाई कर सकता है, राइट। ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है? ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है? हमारे जो भी टेक्स्ट होते हैं, ये एनिमेशन होते हैं, वो हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट होती है, राइट। कोई भी चीज हो सकता है मेरे पीछे कोई वीडियो चल रही हो, तो दैट्स द पार्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, बट अभी चल नहीं रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या है? जब एक जगह से हम, एक बंदा बैठ के सब लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। जैसे मैं बैठी हूँ और आप सब लोग अलग अलग जगह बैठे हैं, सबको इंफॉर्मेशन वो पहुंच पा रही है, दैट इज द पार्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए बहुत यू नीड अ पर्सन फॉर दैट, ठीक है। प्रोडक्शन में, जैसे कि आपको फिल्म मेकिंग में भी ये पार्ट काम आता है, तो इसमें भी काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। पब्लिक रिलेशन आई थिंक इज अ रिपीटेड पार्ट, माय अपॉलॉजीज। मीडिया प्लानर, मीडिया प्लानर क्या होता है? इवेंट मैनेजर क्या होता है? इवेंट मैनेजर हमारा क्या होता है कि मीडिया प्लानर कौन सा होता है हमारा? सिंपल, कोई भी कौन से मीडियम से आपको इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंचानी है या आप तक पहुंचानी है, किसी भी फॉर्म में, लाइक वो प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, दैट इज अ मीडिया प्लानर। इवेंट मैनेजर, किसी भी इवेंट को मैनेज करना, राइट। किसी भी, जैसे आपने देखा होगा आपके घर पे शादी होती है, तो एक बंदा उसको बहुत अच्छे से मैनेज करता है, या आजकल बहुत मैनेजमेंट एजेंसीज आ गई हैं, बहुत सारे लोग स्पेशली कोर्स करते हैं इसमें इवेंट मैनेजमेंट का। तो बहुत अच्छा कोर्स होता है ये, जिसमें आपको, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, ऑफ कोर्स हर काम में करने के लिए स्किल्स होनी चाहिए। तो इवेंट मैनेजर भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है आफ्टर डूइंग मास मीडिया। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड, दे कैन गो विद इवेंट मैनेजर फील्ड ऑल्सो। आई होप ये सारी मैं अच्छे से समझा पाई हूँ आप लोग को। जो भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, विल डिस्कस इन द एंड। अब बात करते हैं हम अपने जर्नलिज्म की। अब जर्नलिज्म होता क्या है? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मीडिया और जर्नलिज्म दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। मीडिया, जर्नलिज्म इज द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑन करंट इवेंट्स बेस्ड ऑन फैक्ट सपोर्टेड विद प्रूफ और एविडेंस। जैसे कि आप देखते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज, अभी कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसकी कवरेज के लिए, ठीक है, कोई भी रिपोर्टर आता है हमारे पास, ठीक है, तो वो क्या है? वो किसका पार्ट है? जर्नलिज्म का, जो आपको फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में करेक्टली बताता है, जो प्रूफ और एविडेंस के साथ आपको बताता है, दैट इज द पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। यहाँ पे हमारा ये जर्नलिज्म कंप्लीट होता है, राइट। तो बस ये दो, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, मैंने आसानी से समझाने की कोशिश की है आप लोग को। So the word journalism applies to occupation as well as collaborative media who gathers and publish information based on the facts and figures, ठीक है, जो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स में बताता है, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन और ट्रू इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाता है, चाहे वो कोई भी मीडिया हो। हम बात करें लाइक प्रिंट मीडिया, अगेन प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, न्यूज शीट या बिलबोर्ड्स होते हैं, तो किसी भी फॉर्म से हम पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो मीडिया है वो दो ही चीजों के आस तरफ इवोल्व कर रही है, या तो वो हमारी प्रिंट मीडिया है, चाहे वो हमारी डिजिटल मीडिया है। मीडिया तो दो ही तरीके की है, दीज आर द पार्ट, सब पार्ट्स हमारे बहुत हैं, राइट। अब हम बात करते हैं जर्नलिज्म तो क्या है। जर्नलिज्म सिंपल एक ही शब्द है, जो हम अपनी इंफॉर्मेशन, जो ट्रू इंफॉर्मेशन है, जो करंट इंफॉर्मेशन है, हम तुरंत अपनी लोगों तक, अपनी मास ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्नलिज्म, ठीक है। तो जर्नलिज्म क्या है? जर्नलिज्म लोग मास मीडिया करने के बाद ही करते हैं जर्नलिज्म, ठीक है। इसमें पीजी प्रोग्राम्स, काफी अट्रैक्टिव पीजी प्रोग्राम्स होते हैं। सो अब हम बात करते हैं आर्ट जर्नलिज्म। बहुत तरीके के जर्नलिज्म होते हैं यहाँ पे, आर्ट जर्नलिज्म, एजुकेशन जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, लाइफस्टाइल जर्नलिज्म, प्रिंट जर्नलिज्म, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, डिजिटल जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म,
टैबलॉइड जर्नलिज्म, फोटो जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेटिव एंड डेवलपमेंट जर्नलिज्म। बहुत अलग अलग तरीके के जर्नलिज्म है, बट मैं आपको बहुत ही तरीके से बताती हूँ यहाँ पे कि इन जर्नलिज्म को हार्ड न्यूज जर्नलिज्म कौन सा होता है, सॉफ्ट न्यूज जर्नलिज्म कौन सा होता है। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट न्यूज जर्नलिज्म। पहले हम सॉफ्ट से ही बात करते हैं। जो भी आपको इंफॉर्मेशन अट्रैक्ट करती है, ठीक है, द न्यूज टॉक्स अबाउट गॉसिप, कोर्स everybody likes gossip, but that's not good. So when we talk about gossip, about celebrity, fashion news, fashion के बारे में, that or we can say technology के बारे में, भाई ये फोन अच्छा है, ये फोन अच्छा है, तो एक तरीके का ये entertainment पर ही है। तो this is a part of soft news। अब हम देखते हैं, let's figure out कि इसमें कौन सी soft news का पार्ट है। एक तो आपका हो गया इसमें आर्ट एंड कल्चर जर्नलिज्म, एक हो गया आपका सेलिब्रिटी जर्नलिज्म, एक हो गया आपका एजुकेशन जर्नलिज्म, एक है आपका लाइफस्टाइल जर्नलिज्म। तो ये सारे आपके किसके पार्ट हैं? दीज आर द पार्ट ऑफ सॉफ्ट न्यूज जर्नलिज्म। जो भी बच्चे इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे इस टाइप के जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड हैं, वो यहाँ पे एनरोल इन फील्ड्स में। और ऐसा नहीं है कि यही फील्ड्स है, इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ठीक है, लेट्स टेक इट वन बाय वन। आर्ट जर्नलिज्म क्या होता है? आर्ट एंड कल्चर जर्नलिज्म जिसको हम बोलते हैं, दिस इज टाइप फॉर द पीपल हु लव आर्ट। आर्ट क्या है? एक कला ही तो है। कला किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हो सकता है वो खाना बनाने में हो सकता है वो डांस करने में हो, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, राइट? म्यूजिक में हो सकती है, लिटरेचर में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो अगर इस तरीके का आपको कोई भी जर्नलिज्म करना है, यू कैन गो विद आर्ट जर्नलिज्म, राइट? नाउ वी टॉक अबाउट कल्चर जर्नलिज्म। अब कल्चर जर्नलिज्म क्या होता है? जाहिर सी बात है, हर किसी को घूमने का शौक होता है। तो आजकल आप देख रहे हैं लोग इस कोविड से इतना थक गए हैं कि वो घूमने जा रहे हैं। कोई हिल स्टेशन पे जा रहा है, कोई आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, ठीक है, जैसे भी जा रहा है। अब तो खुल भी चुके हैं काफी सारे पोस्ट। तो जहाँ पे आपको अलग अलग कल्चर देखने की बारी आती है, ठीक है, या जो बंदे इंटरेस्टेड होते हैं ट्रैवलिंग करने में और पूरे कल्चर को अपने कैमरे में कैद करने के लिए, वो करते हैं आपका कल्चर जर्नलिज्म। ये भी बहुत अट्रैक्टिव फील्ड है और आजकल ये हमारे यूथ को बहुत इंस्पायर कर रही है, ठीक है। सो द वन हु वांट्स टू ट्रैवल और या हु आर ट्रैवलिंग, गुड लक फॉर देम। सो सेलिब्रिटी जर्नलिज्म क्या होता है? सेलिब्रिटी जर्नलिज्म, जैसे कि आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज के पीछे पीछे लेके माइक घूमते हैं, ठीक है। कुछ तो ऐसे ही होते हैं छोटे मोटे, या फिर जिनको पर्टिकुलर जो किसी इवेंट्स में या किसी भी चीज में आ सकते हैं, उनके सेलिब्रेशंस में आ सकते हैं, उनके इवेंट्स में आ सकते हैं। तो वो कोई ऐसे ही नहीं होते, कोई भी बाहर से उसके इंसान नहीं आ जाता है जो उनके जो इवेंट चल रहा है उसको पूरा कवर करे, ठीक है। तो उसको पर्टिकुलर फंक्शन सेलिब्रिटी जर्नलिज्म वही करता है जिसको उस पर्टिकुलर चीज को कवर करना होता है, राइट? तो अब हम बात करते हैं सेलिब्रिटी जर्नलिज्म थोड़ा सा डिटेल में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या आता है कि कौन सा भाई जो हमारे एक्टर हैं, कौन सी मूवी साइन कर रहे हैं, कौन से एक्टर हैं जो जिन्होंने बहुत टाइम से वो ब्रेक ले रहे हैं अपने किसी भी चीज में, लाइक ऑफकोर्स की बात है मूवीज में। तो ये तरीके का जर्नलिज्म, यंगस्टर्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ जर्नलिज्म, दे वांट टू नो मोर अबाउट सेलिब्रिटीज। तो इस तरीके का जर्नलिज्म में जो भी इंटरेस्टेड है कैन गो विद सेलिब्रिटी जर्नलिज्म। अब बात आती है हमारी एजुकेशन जर्नलिज्म की। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि हम देख रहे हैं, दिस फील्ड इज ग्रोइंग डे बाय डे, राइट? इट कवर ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू एजुकेशन। जो भी चीजें आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो आपका कौन कवर करता है? एजुकेशन जर्नलिज्म। अपकमिंग एग्जाम्स कौन से हैं, ठीक है, रिलेटेड टू एजुकेशन, पीपल आर हु आर मोर अवेयर अबाउट व्हाट्स गोइंग इन एजुकेशन, एजुकेशन सेक्टर में क्या चल रहा है, कौन से अपकमिंग एग्जाम्स हैं, ये एग्जाम कैंसिल हो गया है तो क्यों एग्जाम कैंसिल हुआ है, इसका एग्जाम की न्यू डेट क्या है। तो ये सारी चीजें जो कवरेज के अंदर आती हैं, कौन करता है? जो भी इंटरेस्टेड होता है एजुकेशन जर्नलिज्म करने के लिए, this can be help for those people who are really interested in this field. I hope I'm very much clear to all of you. स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल जर्नलिज्म और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। लाइफस्टाइल मीन सिंपल है, जो भी आपको कि आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, अच्छा ओके ये हीरो हीरोइन ने पहना है तो ओके हम भी ऐसी ड्रेस बनवाएंगे। तो जो भी चीज लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ कपड़े ही नहीं होता है, लाइफस्टाइल आपको अलग अलग तरीके से मिल सकता है। तो उस तरीके का अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो अट्रैक्टिव लग रही है तो यू कैन गो विद द लाइफस्टाइल जर्नलिज्म। अब हम बात करते हैं
प्रिंट जर्नलिज्म, ब्रॉड जर्नलिज्म एंड एक होते हैं हमारे मीडियम। मीडियम क्या होते हैं? मीडियम, दीज आर द सोर्सेज जहां से आप अपनी इंफॉर्मेशन पास करते हो, तो दीज आर द मीडियम, प्रिंट, ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल। ये अभी मैं आपको बार बार ही बता रही हूँ किस तरीके से होते हैं। तो प्रिंट जर्नलिज्म क्या होता है हमारा? एवरीबडी टॉक्स यू अबाउट मैगजीन्स, पेपर सप्लीमेंट्स, ई बुक्स भी हो सकती है, एवरीथिंग, सॉरी नॉट ई बुक्स, दैट एवरीथिंग विच इज कम इन प्रिंटेड फॉर्मेट, जो भी आपकी प्रिंटेड फॉर्मेट में होती है, दैट इज कॉल्ड प्रिंट जर्नलिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप जर्नलिज्म करते रहते हैं, तो दैट गोज विद प्रिंट जर्नलिज्म। ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, एनीथिंग विच इज कम ऑन टीवी एंड रेडियो, जैसे मैं भी अभी आ रही, ठीक है, तो इट्स अ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म। ठीक है, अगर इस तरीके से आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, इस तरीके से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिजिटल जर्नलिज्म कर सकते हैं आप, डिजिटली आप लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं एनी मीडियम पे, तो यू कैन गो विद द डिजिटल जर्नलिज्म। तो अब हम बात करते हैं आपसे टैबलॉइड जर्नलिज्म। या दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम जब बात करते हैं, जब हम, आपने देखा होगा जो न्यूज़पेपर का जो हाफ पार्ट आता है, जो छोटे न्यूज़पेपर्स जिनको हम बोलते हैं स्मॉल, विच इज स्मॉलर इन साइज, दैट इज कॉल्ड टैबलॉइड। ठीक है, छोटे से पेज पे जो बहुत सारी गॉसिप्स या इंफॉर्मेशन या ट्रेंडी इंफॉर्मेशन हम लोग तक पहुंचाई जाती है, जो मिर्च मसाला जिनको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टैबलॉइड जर्नलिज्म। अगर उस टाइप की स्किल्स आपके अंदर हैं, यू कैन गो विद द टैबलॉइड जर्नलिज्म, राइट। और हार्ड जर्नलिज्म कौन सी होती है? तो दो तरीके की मैंने अभी आपको बताई, एक तो सॉफ्ट हो गई हमारी, एक मीडियम्स हो गए, और एक हमारी हार्ड जर्नलिज्म होती है। हार्ड जर्नलिज्म जो आपकी क्राइम से रिलेटेड होती है, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड होती है, या वॉर से रिलेटेड होती है हमारी, दैट इज कॉल्ड हार्ड जर्नलिज्म, जो आपको मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन देती है, पर्टिकुलर या ऑन द टाइम इंफॉर्मेशन आप पे रिवील करती है, जो भी कोई भी चीज हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जैसे क्राइम ब्रांचेस है, दे आर अ पार्ट, जो लोग होंगे जो उसमें लोग कवरेज करते हैं, वो कौन से लोग होते हैं, उन्होंने इस टाइप के जर्नलिज्म किया होगा डेफिनेटली, देन ओनली दे आर अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव। आप लोग ने देखा होगा आर्मी नेवी की न्यूज कौन कवर करता है? मैं आपके कोई आम बंदा जाके उसको नहीं कर सकता है, या अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी नॉर्मल जर्नलिस्ट जाके वहां पे कर लेगा तो नहीं है, उसने पर्टिकुलर इसमें नॉलेज हासिल की है, तभी वो उस चीज का पार्ट बन पाया है। आपने देखा है वॉर की काफी सारी इंफॉर्मेशन आती है, तो उसका कवरेज भी हमारे पर्टिकुलर टाइप के पर्सन ही है जिसने इस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में किया है, तो वो ये कर सकता है। डेवलपमेंट, अपने एरियाज में डेवलपमेंट, इस तरीके से अगर आपको कुछ भी दिखानी है, शो करनी है वेदर में, तो यू कैन गो विद डेवलपमेंट जर्नलिज्म। मीन्स क्या चेंजेस हो रही है हमारी सोसाइटी में, इकोनॉमी में हमारी क्या चेंजेस हो रही है, वी कैन गो विद इट। तो आपने देखा कि हमने इतने तरीके के जर्नलिज्म पढ़े। अब वही है, जिसको जिस जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, जिस भी एरिया में इंटरेस्ट है, वो इसमें क्या कर सकता है, इसमें एनरोल कर सकता है, राइट। फोटो, या देयर इज वन फोटो जर्नलिज्म। फोटो जर्नलिज्म क्या है? फोटो अच्छी खींचना, राइट। हर किसी बंदे को होता है कि भाई हमारी अच्छी फोटो खींचो, हमारी अच्छी फोटो। जो प्रोफेशनली ये चीज करना चाहते हैं, दे कैन गो विद फोटो जर्नलिज्म, राइट। जिनको एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल करनी है, प्रोफेशनली मुकाम हासिल करना है, वो हमारे करते हैं फोटो जर्नलिज्म। सारी फोटो जर्नलिज्म क्या होती है? अलग अलग, चाहे वो आपकी वेदर की हो, चाहे किसी भी चीज को, किसी भी वॉर की हो सकती है, या किसी वेडिंग की हो सकती है, किसी भी चीज की अगर आपको प्रॉपरली कुछ भी करना होता है, अगर जर्नलिज्म के अंदर आते हैं, तो फोटो जर्नलिज्म वो पार्ट है आपका, ठीक है। जैसे कि जो आपको बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग न्यूज देती है, ठीक है, तो यू कैन गो विद द फोटो जर्नलिज्म। अब हम बात करते हैं, भाई हमने ये देखा कि जर्नलिज्म है क्या, ठीक है। फिर हमने देखा फील्ड क्या होती है जर्नलिज्म में। नेक्स्ट पार्ट इज कोर्सेज इन जर्नलिज्म, ठीक है। जाहिर सी बात है, अब हमने पढ़ लिया, अब हमने कोर्स भी कर लिया, अब हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से कोर्सेज आते हैं जर्नलिस्ट के अंदर। जैसे कि अभी हमने मास मीडिया में बात की थी, ऐसे ही हमारे कोर्सेज इन जर्नलिज्म है। दिस इज एन अपग्रेडेशन फॉर्म ऑफ मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। देयर आर n number of courses. I have listed here the one who are much more in demand. जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, ईयर कोर्स भी होते हैं, एंड पीजी कोर्सेज भी होते हैं। डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, डिप्लोमास जो आपके होते हैं वो 2 to 6 मंथ के भी होते हैं, बट 6 to 1 का ज्यादा ही अच्छा रहता है। तो इफ यू वांट टू गो विद डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, जैसे कुछ लोग मीडिया का कर लेते हैं, बाद में वो सोचते हैं कि जर्नलिज्म में डिप्लोमा कर लें, दे कैन गो विद दैट ऑल्सो।
जिन्हें पूरा ही करना है, अपनी डिग्री हासिल करनी है, दे कैन गो विद पीजी प्रोग्राम्स ऑल्सो। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे भी आप अपना इंटरेस्ट रखते हैं, जिस भी फील्ड में, जिस भी तरीके की कैटेगरी में आप इंटरेस्ट रखते हैं, उस कैटेगरी में अपने आप का दाखिला ले सकते हैं। जैसे कि डिप्लोमा इन जर्नलिज्म 1 साल का है आपका, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है डिप्लोमाज आपके 1 साल के होते हैं, डिप्लोमाज कई आपके 2 या 3 साल के भी होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि 1 ही साल के होते हैं डिप्लोमाज। बैचलर्स इन जर्नलिज्म, बीए इन जर्नलिज्म भी कर सकते हैं, बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म 3 years। बीए इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म भी होता है आपका, बीए इन मास मीडिया, बीए जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, स्क्रिप्ट राइटिंग, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म इन बीएससी, बैचलर्स ऑफ मीडिया साइंस। तो मैंने आपसे जैसे बोला बहुत सारे कोर्सेज हैं इस तरीके से, बट मैंने यहाँ पे फ्यू ही लिखे हैं जो भी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होंगे। जो भी स्टूडेंट्स मीडिया से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, या जो भी बच्चे अभी इनरोल करना चाह रहे हैं, आफ्टर 12th अब एग्जाम्स भी आपके हो गए हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो इसको देखेंगे, डेफिनेटली उनको काफी हेल्प मिलेगा इससे। अब हम बात करते हैं कि भाई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ये प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं। पीजीडी प्रोग्राम्स हमारे काफी सारे 1 to 2 years हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो लाइक डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी भी है आपका, प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट है। अभी हमने देखिए, आपने ये टर्म्स आप बहुत अच्छे से अवेयर हैं, रेडियो की, टीवी की, जर्नलिज्म क्या होता है। तो हम, जाहिर सी बात है, जब हमें टर्म्स अवेयर हो गई हैं तो हम कोर्सेज को पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर बात किसकी की जा रही होगी, राइट। मल्टीमीडिया हो गया, मास्टर्स इन कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। जर्नलिज्म मास, तो जैसे कि आप देख लीजिए एक बार और, एमएससी इन टेलीविजन एंड फिल्म प्रोडक्शन। जो भी इंसान फिल्म प्रोडक्शन टीम को ज्वाइन करना चाहता है, जिसको अच्छा लगता है फिल्म बनाना, तो इस तरीके से वो यहाँ से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकता है। इवन यू कैन गो फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स एज वेल। नाउ we will talk about job opportunities after journalism. job opportunities जर्नलिज्म की क्या क्या रहती हैं हमारी, देखिए। फोटो जर्नलिस्ट होते हैं हमारे पास, रिसर्चर्स होते हैं, कॉपी राइटर्स होते हैं, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट होते हैं, एडिटर होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, बहुत तरीके के, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट होते हैं, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट होते हैं, एडिटोरियल असिस्टेंट होते हैं, जैसा कि बाकी आप देख रहे हैं। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फोटो जर्नलिस्ट क्या है? फोटो जर्नलिस्ट क्या है? जो इमीडिएट, कोई भी मान लीजिए जिसको बहुत ज्यादा कलेक्शन ऑफ फोटोज में बहुत शौक है, द वन हु इज वेरी मच लीन इंटरेस्टेड इन clicking the photos, no matter where it's from, what, right? कहाँ से है वो फोटोज, या किस चीज के हैं, या पर्टिकुलर किसी मीडिया से रिलेटेड है, या किसी भी चीज से रिलेटेड है, तो वो जो भी हम सारे उनको ऑर्गेनाइज करते हैं अपने सारे पास। तो वो अगर इस तरीके की कोई भी जॉब्स में इंटरेस्टेड है पर्सन, तो वो पार्ट आता है आपका फोटो जर्नलिस्ट के अंदर। इट इज बेसिकली और फोरली डिजाइन द पर्सन हु इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन ऑल दिस फोटो क्रिएशन, राइट। रिसर्चर्स कौन होते हैं? जो इंफॉर्मेशन ढूंढने में जो बहुत ज्यादा ही उनमें स्किल्स होती हैं। ये इंफॉर्मेशन यहाँ से ले आए, वो इंफॉर्मेशन वहां से ले आए, नंबर ऑफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन जो इकट्ठा कर सकते हैं, दे कैन गो विद दिस रिसर्चर्स जर्नलिज्म में जा सकते हैं। किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च करना, राइट। रिसर्च तो बहुत, इट्स अ वास्ट फील्ड। रिसर्च तो आप किसी भी चीज पे कर सकते हैं। तो किसी भी टाइप के रिसर्च में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके का भी हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, या इस तरीके की आप प्रोग्राम करके आप जॉब भी हासिल कर सकते हैं। कॉपी राइटर्स होते हैं, कॉपी राइटर की आप जॉब ले सकते हैं इस तरीके से। पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, जैसे कि आपने बताया कि पब्लिक के साथ किसी भी मान लीजिए किसी भी लेवल पे आपको रिलेशन बनाना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बेस्ड, या किसी भी अपनी ओन, जो भी आपके पास अपना बिजनेस चल रहा है, उससे कोई भी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, अच्छे से बॉन्ड बनाना चाहते हैं, यू कैन गो विद पब्लिक रिलेशन, ठीक है। ये नेक्स्ट है हमारे पास एडिटर, रिपोर्टर्स। एडिटर्स क्या होते हैं हमारे? एडिटर्स सिंपली हमारे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे रिपोर्टर होते क्या हैं। सिंपली सी बात है, जो भी रिपोर्टिंग करते हैं, फील्ड में आते हैं, मैदान में आते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? रिपोर्टर होते हैं, ठीक है। जो भी आपको पर्टिकुलर वक्त की इंफॉर्मेशन देते जाते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा था कि कोविड बहुत चल रहा था, कितने लोग की डेथ हो रही थी, मेनी ऑफ देम हैव लूज देयर लव्ड वंस, इतने लोगों ने अपने लोग को खो दिया था। तो कैसे आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच पा रही थी? बाय द हेल्प ऑफ दोज रिपोर्टर्स। इस तरीके की आप जॉब करना चाहते हैं, इस तरीके से अगर आप इस फील्ड में अपने आप को एंगेज करना चाहते हैं, तो इस तरीके की जॉब
ये ऑफ कोर्स मास मीडिया के बाद मिलेंगी, जर्नलिज्म के बाद मिलेंगी आपको, राइट। तो एवरीथिंग हैज अ स्टेज, एक एक करके आप हम इस स्टेज पे पहुंचते हैं, तो ऐसे ही आप रिपोर्टर की जॉब भी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारा होता है सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट। कौन होते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट? वो लोग होते हैं जो कि आपकी सोशल साइट्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, राइट। कोई भी हो सकती है, चाहे वो कोई भी सोशल साइट्स हो सकती हैं आपकी, राइट। फॉर एग्जांपल आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, या किसी भी सेलिब्रिटी के अकाउंट को अच्छे से हैंडल करना, उसके बारे में बताना, ठीक है, उस पोस्ट डालना, तो ये जितने भी काम करते हैं वो हमारे सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट करते हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ जॉब, तो आपको ये जॉब भी हासिल होती है। ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट होते हैं हमारे, एडिटोरियल असिस्टेंट होते हैं, मैगजीन फीचर एडिटर होते हैं, मैगजीन जर्नलिस्ट होते हैं, न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट होते हैं। तो न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट वो होते हैं जो न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं, मैगजीन्स में लिखना, मैगजीन को फीचर कराना, ठीक है। तो ये सारे हमारे एक दूसरे से ही रिलेटेड हैं, समवेयर और दी अदर। तो इस तरीके से द पीपल हु आर much lean into it, the one who are much interested into it, they can go with these type of jobs. Political risk analyst, press sub editor, publishing copy editor, proofreader, web content manager. Yes, ये बहुत ट्रेंडिंग में है हमारा web content manager, ठीक है। web and writers also they are good in demand, ठीक है। राइटअप जो लोग लिखते हैं, ठीक है, और उनके अकाउंट को मैनेज किया जाता है, तो हमारे वो आते हैं राइटर्स, राइट। सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। टॉप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंट्रेंस एग्जाम। बच्चों को बहुत सारी दिक्कत हो जाती है कि कौन कौन सी टॉप साइट्स होती हैं जहाँ से कि हम इसके बारे में इकट्ठा कर सकते हैं, कौन सी बेस्ट साइट्स होती हैं, इवन हर किसी को प्रॉब्लम होती है। तो आई हैव मेंशन फ्यू ऑफ देम ताकि आप लोग को थोड़ा सा आसानी हो जाए इस चीज में। सो जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जाम न्यू दिल्ली, यहाँ पे एक इट्स वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटीज। तो आप इस यहाँ से आप कर सकते हैं अपना मास मीडिया का, इट्स वन इन द टॉप। एक है आपकी सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम मुंबई, अदर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। ऐसा नहीं है कि खाली यही सारी हैं, बट कुछ टॉप थी, जितना मैं लिख सकती थी आप लोग के लिए उतना मैंने लिख दिया। तो ये कुछ टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कराती हैं, हर साल कंडक्ट कराती हैं। आजकल कोविड के चक्कर में थोड़ा सा डिले हो गया है, बट एग्जाम्स दे आर कंडक्टिंग द एग्जाम। तो आप इस तरीके से अगर कोई भी बच्चा करना चाह रहा है तो इन सारी साइट्स में जाके देख सकता है कि इनके फॉर्म्स कब वगैरह आ रहे हैं। थोड़े से फॉर्म आजकल डिले हो गए, बट यू कैन चेक इट। यस, अब तक हमने पढ़ लिया कि जर्नलिज्म क्या है भाई एंड मास मीडिया क्या है। अब हम इनकी थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन देख लेते हैं, इनमें कौन कौन से आप स्पेशलाइजेशन, मतलब लाइक गुड वे यू कैन गेट हैंडसम अमाउंट ऑफ पैकेजेस इन जॉब सैलरी, राइट। तो आप एक अगर जर्नलिज्म करना चाहते हैं, जर्नलिज्म जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक थोड़ा सा जल्दी से रिव्यू दे देती हूँ आपको। इट इज द एक्टिविटी ऑफ गैदरिंग, एक्सेसिंग, क्रिएटिंग एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। इट इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज। कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, गैदर करना, इकट्ठा करना और अपनी पब्लिक तक पहुंचाना, ठीक है, एट दैट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड जर्नलिज्म। एक अच्छा पॉइंट है ये। ब्रॉडकास्टिंग, it covers a wide range of different media that includes television, radio, podcast, बहुत फेमस हैं आजकल पॉडकास्ट लोग के, ब्लॉग, एडवर्टीजिंग, वेबसाइट, these are the digital forums। तो आप देख सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग में भी एक बहुत अच्छा करियर है, हम अगर चाहें तो इसमें भी अच्छा सा करियर बना सकते हैं। पब्लिक रिलेशनशिप में काफी अच्छी अच्छी जॉब्स होती हैं, पब्लिक रिलेशन मैनेजर, जैसे कि अभी हमने देखा था। पब्लिक रिलेशन इज अ मार्केटिंग टूल ऑफ कम्युनिकेटिंग विद एक्सपर्ट। ये पब्लिक रिलेशंस किसी भी तरीके की हो सकती है, दीज आर पेड ऑल्सो और दीज आर नॉन पेड ऑल्सो, ठीक है। दैट बिल्ड म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद दी पीपल, राइट। म्यूचुअल रिलेशनशिप पे बनती हैं। इवेंट मैनेजमेंट, कंपनीज लाइक, जैसे कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इवेंट मैनेजमेंट के आपके बारे में बताया था, किसी भी इवेंट को मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड इवेंट मैनेजमेंट। तो कंपनीज और हर कंपनी, जैसे कि अगर हम बात करें किसी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी बहुत रेप्यूटेड कंपनी की, तो ये लोग अपने कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक साल इवेंट मैनेज करते हैं ताकि उनकी कंपनी के बारे में हम तक जानकारी पहुंचती रहे, हम अवेयर होते रहे, राइट। अदरवाइज हमें कैसे पता चलेगा कि कौन, ये कैसे पता चलेगा कि ओरेकल इज दिस मच फेमस, IBM इज दिस मच फेमस। ये ऑफकोर्स ये हर साल इवेंट मैनेज करती है,
तभी हमें पता चल पाता है कि इस कंपनी में, ठीक है, इवेंट्स क्या होते हैं, पीरियोडिकली होते हैं, जिन कंपनी में ये पीरियोडिकली होते हैं, ठीक है, एक तरीके से हम पे सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी फॉर्म तक पहुंच पा रही है, तो दिस इज कॉल्ड इवेंट मैनेजमेंट। तो अगर इस तरीके से कोई भी कोर्स करना चाह रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी का पीरियोडिकली इवेंट्स को मैनेज करना चाह रहा है, तो वो इस तरीके से प्रोग्राम भी कर सकता है। द वन हु लव्स मैनेजिंग द थिंग्स कैन गो विद दिस प्रोग्राम, दैट इज इवेंट मैनेजमेंट। Advertising is simply a visual or audio way to communicate to all forms of media, right? Again and again I'm telling you, advertisement एक simple, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वो वीडियो हो, हमें कोई मतलब नहीं पड़ता कि आपकी कम्युनिकेशन पहुंचनी चाहिए, आपकी ब्रांड या अपनी कंपनी का नाम हमारी पब्लिक या टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, न्यू मीडिया, नो मैटर व्हाट, वेबसाइट्स के थ्रू भी पहुंच सकता है, मैगजीन्स के थ्रू भी पहुंच सकता है, किसी भी तरीके से जा सकता है। तो दैट इज अगर वो इस तरीके की आप इंटरेस्टेड हैं, यू कैन गो विद दिस एडवर्टाइजमेंट पार्ट। सो अगेन आई एम लेटिंग यू नो दैट journalism and mass media, these are the few specializations which you can thoroughly, you can go to it, and if you are interested you can enroll it. So yeah, I think most interested question, it is the right career for me. I don't know किसके लिए right है, किसके लिए wrong है, I don't know। ये एक particular self evaluation है, ठीक है। तो this answer questions, this requires a little self evaluation, so I think आप लोग अब तक evaluate कर चुके होंगे। I just want to say that you need to have creativity, the word with your excellent communication skills, or whatever the skills you have, you can brush up those skills no matter what, ठीक है। लोग कुछ भी कहें, आपको अपनी स्किल्स के बारे में हमेशा ब्रश अप करते रहना चाहिए, ठीक है। So then you can come to the conclusion, then you can रात में सोइएगा और सोचिएगा आंखें बंद करके, is this those who are interested in this field, या जो लोग चाह रहे हैं या जो लोग कंफ्यूज हैं, परप्लेक्स हैं जो लोग, तो सोचिए, is this the right career for me? एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ के जा रही हूँ। So just I hardly take you a few just a second, I'll take you to the back that what we learned in this session, कि हमने क्या पढ़ा है सेशन में, मीडिया क्या है, हम लोगों ने सब देखा, टाइप्स ऑफ मीडिया, कितने तरीके की मीडिया होती है, डिफरेंस क्या होता है मास मीडिया में और कम्युनिकेशन में, करियर ऑप्शंस क्या है हमारे मास मीडिया में, कोर्सेज, भाई करियर क्या कोर्सेज क्या है मास मीडिया में, कौन लोग एनरोल कर सकते हैं मास मीडिया में, जर्नलिज्म क्या है, कितने तरीके का जर्नलिज्म होता है, ये सारी चीजें हमने अपने इस कोर्स में, इस सेमिनार में और इस इवेंट में हमने बताई। जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर जर्नलिज्म, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप यू ऑल लव दिस, हर किसी ने ये एंजॉय किया हो सेमिनार। थैंक यू सो मच एवरीवन for listening me so patiently. Thank you, ma'am. We move on to the question and answer session. First question is, any scholarships available for media studies abroad? Hello. Hello, can you hear me? Hello. Can you hear me? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, first question is, any scholarships available for media studies abroad? Scholarships. मैम स्कॉलरशिप कैन मीडिया स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करें, स्कॉलरशिप हर किसी चाहे वो आप यूके में बात करें, चाहे वो यूएस में बात करें, हर किसी कोर्स के लिए एप्लीकेबल होती हैं। बट जहाँ तक डिप्लोमा या डिग्री प्रोग्राम में थोड़ा कमी होती है, अगर कोई हम हायर कोर्स कर रहे हैं लाइक पीजी प्रोग्राम के समथिंग, तो उनके लिए हमें मिलती है। बट उस पर डिपेंड करता है कि हर कॉलेज का, अगर वो गवर्नमेंट से ट्राई कर रहे हैं तो इट वुड बी गुड, वहाँ पे उनको स्कॉलरशिप मिलने की चांसेस ज्यादा रहती हैं इन कंपेरिजन टू अदर्स। But yes, उनको मिल जाएंगे। Okay, thank you. Next is, what should we do for TV reporter? I mean, the courses, yes. I think the question is, what should we do for TV reporter? I think he's asking about the courses to take. TV reporter. For a TV reporter, yeah. Okay, okay. ठीक है, टीवी रिपोर्टर के लिए सबसे पहली बात तो है कि टीवी रिपोर्टर का वही दूसरा नाम है आपका न्यूज रिपोर्टर, जो लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी अगर टीवी रिपोर्टिंग में भी अलग अलग तरीके की आप रिपोर्टिंग करते हैं, जैसे कि आपको किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है, चाहे वो वेदर है, लाइक कोई भी टॉपिक हो सकता है, आपका कोई न्यूज से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन है, ठीक है।
तो आप इस तरीके से अपने कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए, लाइक पीजी प्रोग्राम्स में या डिप्लोमा, सॉरी हाँ राइट, पीजी प्रोग्राम्स में इस तरीके से आफ्टर 12 आप कर सकते हैं ये कोर्स। ओके, नेक्स्ट इज न्यूज एंकर के लिए कौन से स्पेशल कोर्सेज हैं? न्यूज काउंसिल, एंकर, न्यूज एंकर। न्यूज एंकर स्पेशल कोर्सेज। हाँ, ओके ओके ओके। न्यूज कोर्स स्पेशल कोर्सेज अगर हम बात करें, देखिए कोई भी डिप्लोमा हो सकता है आपका, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। डिप्लोमा इन टीवी न्यूज में हो सकता है आपका, रीडिंग एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जिसका है। डिप्लोमा इन एक्टिंग या टेलीविजन में हो सकता है। प्रोडक्शन एंड जर्नलिज्म में हो सकता है। तो इस तरीके से आप तरीके से आप ये, या जिस भी फील्ड में आपको मतलब लाइक काफी अच्छा इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड में कर ले। ओके, द नेक्स्ट वन सबसे इज, पहले तो यही आपका टीवी न्यूज, रीडिंग एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। thanks ma'am. The next one is there any good private institute available for doing these courses in journalism? प्राइवेट, ओके मैम, प्राइवेट कोर्सेज तो जैसे कि काफी सारे हमारे जैसे दिल्ली में भी हैं, हमारे डीओ का, सॉरी आई एम जस्ट नॉट गेटिंग द नेम ऑफ इट, I'll come back to this question. Okay, maybe you can leave it in the chat box. Yeah, sure. Okay, and the next one is आपने मास मीडिया एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में तो हाईलाइट कर दिया था, and they are asking how to prepare for it. How to prepare for it? मैम क्या होता है मास मीडिया, अगर इन केस आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन आपको स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं इसके। इन केस अगर हमें स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहे हैं तो आप बहुत सारे जैसे कि कोचिंग के इंस्टीट्यूट हैं, तो आप वहां से भी आप उनका मटेरियल खरीद के, ठीक है, आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इन केस अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन लोग का जैसे गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो उनकी बुक्स वगैरह अवेलेबल होती हैं हमेशा। उस पर्टिकुलर कॉलेज के नाम से भी बुक्स अवेलेबल होती हैं स्टोर्स पे। जैसे कि अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो कुछ बुक्स हमारे यहाँ नहीं मिल पाती हैं जहाँ आप सिटी में रह रहे हो, तो आप वहां से मंगा भी सकते हो। जैसे कि जामिया की, अगर कोई भी बच्चा जामिया से करना चाह रहा है इसमें, तो वहां से अगर किसी भी बच्चे को अगर मान लीजिए नॉर्मल स्कूल्स नहीं मिल पा रही है, तो वहां से भी मंगा सकता है। Okay. Okay, the next one is, ma'am, how can I become a financial journalist so that I can work with channels like CNBC? CNBC में देखिए, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, एटलीस्ट आपको फाइनेंशियल के बारे में इतनी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल एनालिस्ट कौन होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल जिनको रिपोर्टर्स कहते हैं, जो बिजनेस के सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आपको जाहिर सी बात है, आपको एक आपका बैकग्राउंड इस तरीके से होना चाहिए, लाइक आपने कॉमर्स किया हुआ है, लाइक आपके पास अकाउंटेंसी है, तो आप इसमें जा सकते हैं। Okay, the next one is, अकाउंटेंसी के बाद आप कोई भी बीए इन जर्नलिज्म कर लें, या मास कॉम इन जर्नलिज्म कर लें, या एमबीए इन जर्नलिज्म कर लें इन फाइनेंशियल में। okay, बट फील्ड फाइनेंशियल होनी चाहिए आपकी। Thanks. So the next one is, there are different types of journalism like arts, education, sports, etc. Does a student master all these when he or she completes graduation? Pardon? Again, I repeat, there are different types of journalism like arts, education, sports, etc. Does a student master all these when she or he completes graduation? Okay, like, yeah, it's a nice question. Actually, some of the courses they entertain after 12th, and some of the institutes they can entertain after graduation. Okay. Yeah. So, which particular organization you are talking about? So you have to check the website out. Okay. So that's it we have for the questions. I think we can wrap up the session with this. Thanks, Faiza ma'am. It was a very comprehensive and an enlightening session. I'm sure it has helped our participants to get a clear understanding of what mass media and journalism is. So I thank you again on behalf of the AMP team. And thank you so much. Thank you everyone. Welcome. Thank you, listeners.